Hello students, in last class we were studying about electrochemistry. What is electrochemical cell? What are the components of electrochemical cell? Oxidation half cell, reduction half cell, salt bridge, electrode potential. Today we will study about electrode potential and standard electrode potential and standard electrode potential. Right, you have studied about electrode potential, the difference in potential between electrode and electrolytic solution is called electrode potential. Right, suppose I have taken a beaker and in this beaker I am taking zinc. Right, this we have studied in last class. And zinc has tendency to lose electron. Zinc की tendency होती है इलेक्ट्रॉन को lose करने की. Right. So after some time, what will happen? This zinc will get which charge? Negative charge. Sir, why? Because I have told you by ionization, Zn2 plus is produced and electrons are produced. These electrons can't move in solution. So these electrons will remain on electrode, as a result of which the electrode will get negative charge and the solution, electrolytic solution, will get positive charge. There is a formation of layers of two opposite charges here, negative charge, and in the solution positive charge. Positive charge is due to these Zn2 plus which are produced here and are jumping in this electrolytic solution. This is electrode and this is electrolytic solution. Right, electrolytic solution. Now students, the difference in potential between electrode and electrolytic solution is called electrode potential. Right. I gave a task to 3 students, Yadav, AM, Rashi, find out electrode potential. So what they did? They calculated electrode potential. Yadav is telling me some different electrode value of different electrode potential. Rashi is telling me some different, and AM is telling me, reporting me a different value for the same electrode zinc. How is it possible that the same electrode is having different values of the electrode potential? Why? This is because they have taken different concentration of this electrolytic solution. So means ये है साहब कि if we change the concentration of this electrolytic solution, the value of electrode potential is going to be changed. One thing. Another thing, if you are conducting your experiment at different temperature, it is also going to affect the value of electrode potential. So every student, there are 3 students and they are reporting the different values. तो आप क्या करें सर? किसकी वैल्यू माने? Now, in order to get a standard value, हमने कुछ चीजें, कुछ कंडीशंस कर दी फिक्स. क्या क्या फिक्स किया सर? मैंने कहा टेम्परेचर होगा 25 डिग्री सेल्सियस एंड कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा, कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा 1 मोलर. 1 मोलर मीन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन 1 लीटर. चलिए सर, ठीक है. तो अब उससे क्या होगा सर? मैंने कहा दिस इज द स्टैंडर्ड कंडीशन. व्हाट इज द स्टूडेंट्स? स्टैंडर्ड कंडीशन. स्टैंडर्ड कंडीशन. स्टैंडर्ड कंडीशन. नाउ द difference between electrode potential and standard electrode potential. What is the difference between electrode potential and standard electrode potential? क्या difference है बेटा इनमें? क्या difference है? This is the difference in potential. Difference in potential between electrode and electrolytic solution and electrolytic solution. और ये क्या है सर? ये difference in potential. difference in potential.
between electrode and electrolytic solution under standard condition. If we are taking standard conditions, then the difference in potential between electrode and electrolytic solution is called standard electrode potential. Right? समझ बात आई? अगर कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं है तो जो भी डिफरेंस होगा पोटेंशियल के इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में हम उसे कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. बट if you are taking standard condition is the temperature 25 degrees Celsius and the concentration of electrolyte is 1 molar. तब जो डिफरेंस होगा पोटेंशियल का इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में हम उसे कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. चलिए बात क्लियर है. अब आप ये कहते हैं कि सर इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट these इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. देखिए बेटा अब इसको कैसे हम प्रेजेंट करते हैं. तो प्रेजेंट करने के लिए हम रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको वी टेक E, राइट, और ये Mn+. सर M क्या है? M कोई भी मेटल हो सकता है, एग्जांपल Zn, और this N+ is the charge. N क्यों लिखा? I don't know what is the charge. Al3+, Na+, Zn2+, तो मुझे नहीं पता चार्ज क्या होगा. So it is a general presentation. I have taken Mn+/M. तो ये तो सबसे पहले लिखना आयनिक स्टेट. which state? आयनिक स्टेट. और बाद में later on we have to write what? Neutral state. And remember these are written in the subscript. नीचे लिखना है बेटा इसको. So what does this represent? It represents electrode potential. अब आप ये कहते हैं ये है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. डिफरेंस एक नॉट का. Here I am using not, right? And the same thing Mn+/M. तो सिर्फ एक ये नॉट का आप ये कह सकते हैं एक बिंदी का फर्क है in the representation of electrode potential and standard electrode potential. ध्यान रखिए इस चीज को. स्टूडेंट sometimes forget to write this thing while writing the standard electrode potential. चलिए कोई बात नहीं. तो ये जो आपने रिप्रेजेंट किया ये क्या किया? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को. फॉर एग्जांपल E0 of Zn2+/Zn. ये क्या चीज है? दिस इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका? ऑफ जिंक, राइट. ये क्या है? दिस इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. व्हाट इज दिस? दिस इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नॉट स्टैंडर्ड. दिस इज ओनली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक, नॉट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, राइट. तो ये तो आपका हो गया रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. अब आपने कहा सर इसका हम यूज क्या करेंगे? मींस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने पढ़ लिया, हमें समझ में भी आ गया, लेकिन इसका सर यूज क्या होगा? यूज इसका है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ व्हाट? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल. जैसे मैं आपको कह रहा था आप एक पेंसिल सेल ले आए और उससे आप फैन चलाना चाहते हो, तो फैन कैसे चलेगा? अभी फैन तो नहीं चल सकता ना, क्योंकि उसके अंदर उतनी पावर ही नहीं, उतनी पोटेंशियल ही नहीं है. तो सर हमें कैसे पता चला कि किस सेल के अंदर कितना पोटेंशियल है? मैंने मेजर करो उसको. सर कैसे मेजर करें? एक फॉर्मूला है साहब, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. मेजरमेंट नहीं, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. उसके लिए क्या कैलकुलेशन है सर? उसके लिए हमारे पास कैलकुलेशन है, एक फॉर्मूला है हमारे पास. E0 cell is equal to E0R minus E0L. मैंने आपको पहले बता दिया था कि E0R minus E0L ये क्या है सर? दिस इज स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल. क्या है ये? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है. किसका? उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं. ये क्या है? व्हाट इज दिस? This is standard electrode potential. Standard electrode potential.
किसका? ऑफ एनोड, जो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका? ऑफ कैथोड। ऑफ कैथोड जो होता है राइट हैंड साइड पे, इट इज प्रेजेंटेड राइट हैंड साइड। चलिए अब कहते हैं सर वैल्यू पुट करो, ये आराम से निकालिए। मैंने कहा वैल्यू तो तब पुट करेंगे जब हमें वैल्यू पता होगी, पहले तो पता ही नहीं है। तो सर वैल्यू कैसे पता करेंगे? हाउ टू फाइंड, अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हाउ टू फाइंड क्या? द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अच्छा एक बात और बता दूं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम दूसरा और क्या कहते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। चलिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल भी जनरली हम यूज करते हैं इसके लिए। चलिए सर इसको, लेकिन आपने कहा कि कैसे फाइंड आउट करें इसको? मैंने कहा इट इज फाइंड आउट या मेजर्ड बाय यूजिंग शी। इसको हम फाइंड आउट करेंगे साहब किसका यूज करके? शी का यूज करके। सर व्हाट इज दिस शी? वैसे तो हमारी क्लास में बहुत सारी शी हैं, लेकिन उन शी का यूज नहीं करना इसमें। ये जो शी है, ये शी है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सर ये क्या है? दिस इज, इट इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ये क्या है? इट इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ये है एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड। जब भी हम किसी चीज को मेजर करते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई रेफरेंस होना चाहिए ना। आप 1 मीटर को जो लेंथ है क्लॉथ की वो नापते हैं तो आपके पास एक स्टैंडर्ड मीटर का एक होता है, आप उसको उससे कंपैरिजन करते हैं। मेजरमेंट इज अ कंपैरिजन। तो साहब यहाँ भी हमने मेजर करना है और कंपैरिजन करनी होगी और उसके लिए हमें एक रेफरेंस की जरूरत है। तो यहाँ पे जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है वो है SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सर वो क्या होता है मैं बता दूं, उसमें क्या 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 चीजें हैं। दिस इज अ बीकर। इस बीकर में हमने ले लिया एक क्या? ग्लास ट्यूब इन्वर्टेड, और ये एक वायर है। ये क्या है सर? ये प्लेटिनम कोटेड फॉयल है, PT कोटेड फॉयल। व्हाट इज इट? प्लेटिनम कोटेड फॉयल। ये अच्छा, यहाँ पे एक ओपनिंग होती है और यहाँ से हम हाइड्रोजन गैस पास करते हैं 1 बार प्रेशर पे। क्या पास करते हैं इसमें? हाइड्रोजन गैस पास करते हैं 1 बार प्रेशर पे। और दिस इज 1 मोलर HCl सॉल्यूशन। मतलब ये कि ये सबका, ये सारी चीजें डिप होती है 1 मोलर HCl सॉल्यूशन में। तो ये तो है क्या? शी। सर इसका यूज कैसे करते हैं? इससे पहले मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन इसके बारे में बता दूं कि इट इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। पहली चीज है इट्स स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज टेकन 0। इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम क्या लेते हैं? इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल हम लेते हैं 0। अब बातें बहुत सारी हैं। सर 0 क्यों लेते हैं? सर यही हाइड्रोजन गैस ही क्यों नहीं? बातें बहुत सारी, क्वेश्चंस हैं, इनका आंसर भी है, बट अभी हम उतने डिटेल में इसको स्टडी नहीं कर रहे हैं। अच्छा सर इसका यूज कैसे करेंगे वो मैं बताता हूं आपको। मान लीजिए सपोज यू हैव टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक। अब ये जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। आपने यहां पे तो ले लिया जिंक। अब ये एक और क्वेश्चन है सर, यहीं पे मतलब LHS में लिया है क्या? जिंक। और RHS में क्या ले लिया? RHS में ले लिया मैंने शी। व्हाट आई हैव टेकन? शी। वेयर? एट RHS। चलिए इसको तो जोड़ना है ना हमने, इसको इससे जोड़ दिया जी हमने। ये ऐसे, ये वोल्टमीटर है, यहां से हाइड्रोजन गैस पास होगी बेटा। क्या पास होगी? H2 गैस एट 1 बार प्रेशर। और इसको डिप जो किया है वो किया 1 मोलर HCl में। किसमें डिप किया है? 1 मोलर HCl सॉल्यूशन में। अच्छा जी, और ये जो है जिंक है, ये ZnSO4 में डिप्ड है इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4। ठीक है। अब इस जिंक की टेंडेंसी क्या है? सर इसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को
डोनेट करने की। तो ये जो जिंक है ये तो करेगा इलेक्ट्रॉन को डोनेट, Zn2+ बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। सर इन इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर, किधर, यहाँ पे 2H+ from the solution will go to this platinum foil and will gain electron और ये कन्वर्ट हो जाएगा जी हाइड्रोजन में। अब सर ये प्लैटिनम फॉयल का क्या फंक्शन है, दिस प्लैटिनम कोटेड फॉयल, प्लैटिनम इज इनर्ट इलेक्ट्रोड, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है, मतलब क्या हुआ सर, इट प्रोवाइड surface area, it provides surface for the reaction to take place, for the reaction to take place, रिएक्शन को करवाने के लिए ये केवल सरफेस प्रोवाइड करता है, बस इसका और कोई फंक्शन नहीं है। ये रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करता, ये कहता है कि आओ मेरे मतलब मेरे सरफेस के ऊपर आप केमिकल रिएक्शन हो सकती है, मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, मेरे घर में आओ खाओ, मैं नहीं खाऊंगा, है ना, वही बात हो गई। चलिए ठीक हो गया। अब यहां से इलेक्ट्रॉन आए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को गेन किया गया और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। अब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है सर, ये तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया, हाँ जी बिल्कुल हो गया। तो सर इसका कोई पोटेंशियल भी होगा, बिल्कुल होगा। सर वो कैसे निकाले, ऐसे निकाले, E0 सेल इज इक्वल टू E0 R माइनस E0 L से। अच्छा सर ये राइट हैंड साइड पे कौन है, आप बताओ कौन है, शी है। तो एक चीज मैं आपको और बतानी है मैंने, क्या कि शी को प्रेजेंट कैसे किया था, अभी तो मैं इसको लिखूंगा ऐसे, कैसे 2H+ ऑब्लिक H2 माइनस लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है सर, लेफ्ट हैंड साइड पे जिंक Zn2+ ऑब्लिक Zn, ठीक है जी, ये हो गया जिंक और ये है E0 सेल। आपको मैं एक चीज बताना भूल गया, तो बता देता हूं पहले कि शी को रिप्रेजेंट कैसे किया था, Pt कॉमा हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में है एंड H+। दिस इज हाउ शी इज रिप्रेजेंटेड, she is represented in this way, she को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है जी, समझ बात है। यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, 2H+ ऑब्लिक H2, चलिए ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को गेन करके H2 में कन्वर्ट हो रहा है। चलिए अब ये तो वैल्यू होगी 0। सर कैसे पता आपको, मैंने कहा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज टेकन 0, हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती 0, तो ये वैल्यू तो आनी है पे 0 माइनस इसकी वैल्यू हमें पता नहीं, तो E0 ऑफ Zn2+ ऑब्लिक Zn, और ये इसकी वैल्यू, द वैल्यू ऑफ दिस विल बी द रीडिंग ऑफ व्हाट, अच्छा जिंक का ले रहे हैं तो ये है 0.76 वोल्ट, इसकी वैल्यू हमें वोल्टमीटर से पता चली कि ये जो रीडिंग है ये वोल्टमीटर की रीडिंग है यहाँ पे। चलिए आगे, अब आपने कहा सर E0 ऑफ Zn2+ ऑब्लिक Zn कितना होगा, इट इज माइनस 0.76 वोल्ट। अभी कहानियां बहुत सारी हैं, अभी तो शुरू हुई जिस बात कि ये वैल्यू आपने निकाल ली, ठीक है निकाल तो ली हमने, लेकिन इसकी वैल्यू हमें क्या बताती है, व्हाट डज द वैल्यू, व्हाट डज दिस वैल्यू टेल अस अबाउट द जिंक। एक चीज सर, ये तो आपने जिंक की निकाली है, मैंने कहा अब कॉपर की कैसे निकालेंगे आप, मैंने कहा कॉपर की निकालने के लिए आपने नोट कर, स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लेना भी इसको। नाउ अब हमने वैल्यू निकालनी है किसकी, किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉपर की, जिंक की निकालनी है हमने, किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉपर की। क्या, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर निकालना हमने। तो मैं अब यहां पे ले लूंगा क्या, शी। सर वो उस समय तो लेफ्ट हैंड साइड में जिंक लिया था, मैंने कहा लिया था, यहाँ पे क्या ले रहे, कॉपर ले रहा हूं। सर ऐसा क्यों, मैंने कहा भी बता तो आपको ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्या कि सर वहां पे आपने जिंक लेफ्ट में लिया था, हियर यू आर टेकिंग शी ऑन द लेफ्ट, व्हाई आर यू डूइंग दिस। सो आई विल गिव यू आंसर, the one which is more reactive is always kept at left hand side, remember this thing, जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो रहता है लेफ्ट हैंड साइड पे। वहां पे जिंक ज्यादा रिएक्टिव था तो उसे लेफ्ट में रखा था, यहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है सर, किससे, कॉपर से। जो भी ज्यादा रिएक्टिव है, दो इलेक्ट्रॉन होंगे जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, दैट विल बी ऑन लेफ्ट हैंड साइड। चलिए ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये हाइड्रोजन है सर, क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा सर। सर ये हाइड्रोजन वहां तो गेन कर रहा था, मैंने कहा हाँ वहां पे गेन कर रहा था, क्यों गेन कर रहा था, क्योंकि वहां पे उस केस में हाइड्रोजन वाज लेस रिएक्टिव देन जिंक, हियर हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो हियर इट विल लूज इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा।
चलिए अब ये आ गया कॉपर। यहाँ पे क्या होगा सर, कॉपर विल गेन इलेक्ट्रॉन, विच इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन विच आर लूज्ड बाय हाइड्रोजन, दीज इलेक्ट्रॉन विल बी गेन्ड बाय कॉपर। तो अब ये कॉपर साहब यहाँ पे ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और मैं थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर देता हूँ डायग्राम को। 1 बार प्रेशर पे हमने इसको पास किया है, ये हाइड्रोजन गैस है यहाँ जाएगी, ये 1 मोलर HCl सॉल्यूशन है, ये हाइड्रोजन गैस इस इलेक्ट्रोड पे आके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, लूज करेगी, एंड दोज इलेक्ट्रॉन विल गो टू दिस जिंक, ये जो कॉपर सॉरी, एंड दिस कॉपर इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा एंड विल बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट, विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉपर। सेल बन गया सर, यस, सेल हैज बीन फॉर्म्ड। So there will be a potential, there will be cell potential. How will you calculate that cell potential? With the same formula, but here at right hand side we have what do we have at right hand side? Copper. So E naught of Cu2 plus oblique Cu minus left hand side, at left hand side we have C2H plus oblique H2 से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड E नॉट सेल मुझे नहीं पता, रीडिंग देखनी पड़ेगी किसकी, वोल्टमीटर की, एंड द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर इज 0.34 वोल्ट हियर। ओके सर, what is the value of she is 0, E naught of Cu2 plus oblique Cu 0.34 वोल्ट। ये आ गई किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर। ठीक है बेटा, वी हैव गॉट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर, पहले हमने पता करी थी जिंक की। अच्छा सर, अब इसका यूज क्या करेंगे, मैं इनका यूज कैसे करेंगे इस वैल्यू का, तो आप देखिए इधर क्या देखेंगे, वी हैव in last class we have constructed a cell in which zinc was acting as anode and copper was acting as cathode. Zinc was dipped in ZnSO4, copper was dipped in copper sulfate solution, and this is a voltmeter. Okay, अच्छा चलिए, वोल्टमीटर नहीं तो बल्ब लगा लीजिए, ये बल्ब चल रहा है, एंड दिस इज द सॉल्ट ब्रिज। चलिए जी, ये सॉल्ट ब्रिज हो गया, इसमें KCl हमने लिया था लास्ट क्लास की बात बता रहा हूं आपको। चलिए सर, ठीक है, अब सर ये सेल बन गया, यस, इस सेल का सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या होगा, मैंने कहा कंसंट्रेशन कितनी, आपने कहा 1 मोलर, देन ओनली यू कैन राइट स्टैंडर्ड, अदरवाइज नहीं लिख सकते, यूज ही नहीं कर सकते आप वर्ड का। तो E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट R माइनस E नॉट R। अच्छा जी, अब E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ, at right hand side we have copper Cu2 plus oblique Cu minus E naught of Zn2 plus oblique zinc. What is the value of Cu2 plus oblique Cu? Sir, 0.34 volt. What is the value of zinc? Minus 0.76 volt. इससे पहले में निकाला था हमने, and if I add these two I will get 1.1 volt। तो बेटा हमारे पास इस सेल का जो पोटेंशियल है that is 1.1 volt. Sir, what is this? This is electrochemical cell. It is also called Daniell cell. Daniell cell specific word use किया जाता है इसके लिए, क्योंकि इसमें जिंक एंड कॉपर है, जिसमें भी जिंक एंड कॉपर हम लेंगे 1 मोलर कंसंट्रेशन आप लोगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की, तो वो जो सेल है वो हो जाएगा Daniell cell। ठीक है, अदरवाइज द नेम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, Daniell cell, you can use these words। ओके, ठीक है, तो ये हमारा निकल गया क्या, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। अब बात ये है कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है सर, कि सर व्हाट डज द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टेल अस, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, हाउ टू प्रेजेंट अ सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को प्रेजेंट कैसे किया जाता है, right? So this is our next thing that we have to study.